Now, today I am going to revise history. So, first is lesson devotional path. In this chapter, one word is given Sangam literature, Tamil literature. You know it well now. Who was Martin Luther King? मैं ये सब boxes वाले topic बोल रही हूँ, which are given on the side of the lesson. Martin Luther King was the reformer of Roman Catholic Church. He led the Protestant Reformation movement. He was monk. आप कुछ भी लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक इज नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज के बिलीफ्स लिखने हैं आपको. तो वन थिंग इज कॉमन हियर that Nathpanthi Siddhas and Yogis, they believed in the renunciation of the world. They did not believe in casteism, they didn't believe in ritualism, and they taught various methods to attain salvation, such as, अब इन्होंने कौन से methods बताए? Breathing exercises, yogasans, meditation. So these were the methods taught by Nathpanthi Siddhas and Yogis. Next is Kabir. Kabir ji ki teachings and Kabir ji, how he expressed his ideas. Same, few points are same. Kabir ji believed in formless God. He didn't believe in idol worship. Murti puja mein believe nahi karte the. Next, you will write like this. Kabir ji, he was against ritualism. He was against casteism because he believed in equality. ठीक है ना? So next you will write like this. Kabir expressed his view. He preached in the language of common people. Kabir ji preached in the language of common people. और फिर आप बता सकते हो कि he wrote various sakhis and pads, and his वाणी is included in, किसमें included है कबीर जी की वाणी? पंचवाणी, बीजक एंड गुरु ग्रंथ साहिब. पंचवाणी, बीजक एंड गुरु ग्रंथ साहिब. लर्न इट फॉर वन मार्क क्वेश्चन आल्सो. तो पंचवाणी, बीजक एंड गुरु ग्रंथ साहिब. लर्न इट. नेक्स्ट इज Sufis, major beliefs and practices of Sufi saints. तो इसमें आपने बताना है सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स. और इधर एक चीज आपने पॉइंट जो है वो इसी में लिखना है, दैट इज दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स such as Qawwalis, है ना? They taught various methods to attain salvation such as zikr, dancing, collective prayers, and then you will write breathing exercises. But they also taught that person, while doing all these, person should do these in the presence of peer or under the guidance of master. आप ये लिख सकते हो इसमें. They didn't believe in caste system, they didn't believe in ritualism. So next is, why do many teachers rejected prevalent beliefs and practices? क्यों उन्होंने रिजेक्ट किए? What were the reasons why they rejected prevalent beliefs and practices? Now listen carefully. Why they rejected? तो आपने बताना है prevalent beliefs and practices were very complicated. ठीक है? These beliefs were not in the language of common people. These beliefs gave importance to casteism and ritualism, whereas teachers wanted to set up a casteless society. So that's why they rejected prevalent beliefs and practices. इसलिए उन्होंने इनको रिजेक्ट किया था. ठीक है? नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी. Guru Nanak Dev Ji laid the foundation of Sikhism. Guru Nanak Dev Ji was the first Sikh Guru. तो इसमें आप गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स में क्या बताओगे? सबसे पहले तो ही बिलीव्ड इन वन गॉड, एंड आप ये भी बता सकते हो डिडंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ही डिडंट बिलीव इन रिचुअलिज्म, ही बिलीव्ड इन जेंडर इक्वालिटी, एंड ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. ये भी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे. ही टॉट वेरियस मेथड्स सच एज किरत करना, नाम जपना एंड वंड छकना. He used the term naam, dan and isnan. So these 2 points you will write only in the teachings of Guru Nanak Dev Ji, not in Kabir and not in Nathpanthi Siddhas and Yogis. गलत हो जाना है. रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड वाला पॉइंट सिर्फ नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज में ही लिखना है. कुछ पॉइंट्स कॉमन है, कुछ पॉइंट्स सिर्फ उसी में लिखने हैं. फॉर एग्जांपल कलेक्टिव प्रेयर्स का अगर आपको लिखना है तो यू विल राइट, अगर आपको कलेक्टिव प्रेयर्स वाला पॉइंट लिखना है
So you will write in Sufi saints. Sufi saints believed in collective prayers. ठीक है, तो इस वे से अगर आप करोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी मिक्स नहीं होंगे. नेक्स्ट इज विराशवास एंड सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के आपने बताने हैं व्यूज अबाउट कास्ट सिस्टम. आपने बताना कि दे डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम बिकॉज देयर मेंबर्स वर फ्रॉम लो कास्ट. ठीक है, they wanted to set up a casteless society. They wanted to set up a society where people from different castes could live together in harmony. Who was Mirabai? Why ordinary people preserve the memories of Mirabai? तो इसमें आप क्या बताओगे? She was Rajput princess. ठीक है, मीराबाई. तो आप बताओगे कि मीराबाई she had no interest in worldly affairs. She had no interest in her royal status. She left her palace, अपना पैलेस छोड़ा, and came to live with ordinary people. ठीक है, तो फिर आप बताओगे she openly challenged caste system through her bhajans. She was true devotee of Lord Krishna. So that's why ordinary people of Gujarat and Rajasthan preserve the memories of Mirabai. ठीक है, this is about the chapter devotional path. So come to chapter tribals, nomads and settled communities. So first of all, Sib Singh क्या है? Sib Singh, a home state. Sib Singh was a home state. SIB, Sib Singh was a home state. Richest state of Gonds, Gada Katanga, you know it well. Richest state of Gonds, Gada Katanga. Sib Singh was a home state. Barhot means Barhot. Barhot means 12, 12, Barhot 12, 12. ठीक है, 84 मीन्स 84 तो नाम से ही क्लियर है. 84. 70,000 विलेज. देयर आर 70,000 विलेजेस इन गोंडवाना एंड दिस वाज मेंशन्ड इन. किसमें मेंशन था ये सब कुछ? अकबरनामा. हु रोट अकबरनामा? अबुल फजल. अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल. तो ये सब आपको इसमें लर्न करने हैं फॉर वन वर्ड. एंड देयर पेक्स. हु वर पेक्स? फोर्स लेबरर्स. पेक्स किसको कहा गया? फोर्स लेबरर्स. टांडा मीन्स कारवान. टांडा मीन्स कारवान. तो लर्न इट. ओके, तो नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द. लिसन बच्चे, एक मिनट. What kind of exchanges took place between? कौन कौन से exchanges होते थे इनमें? Nomadic pastoralists and settled agriculturists. What kind of exchanges? Now listen carefully. आपने इसमें बताना है कि ट्राइबल पीपल जो थे they gave wool, ghee and milk to settled agriculturists and in return they got, बदले में इन्हें क्या मिलता था? अब बताओ. Food grains, utensils and clothes. Is it clear? Next is अगर आपको पूछा जाए वर्ना बेस्ड सोसाइटी के बारे में बताओ. वर्ना बेस्ड सोसाइटी तो कितना इजी है, खुद ही बनाने वाला आंसर आप बताओगे. वर्ना बेस्ड सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नास. नो यू नो द वर्नास ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यास. जैसे ही आपने लिखना आपको एक मिनट में दिमाग में आएगा कि ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स वर एट हायर पोजीशन. मैंने नंबर 1 पे ब्राह्मण्स ही बोले हैं. नंबर 2 पे मैंने क्षत्रियस बोले हैं. रूलर्स मीन्स नंबर 2 पे थे. क्षत्रियस रूलर्स होते थे एंड वो नंबर 2 पे, रैंक 2 पे आते थे. फर्स्ट रैंक किसको दिया गया था? ब्राह्मण्स. तो इट मीन्स ब्राह्मण्स वर एट हाईएस्ट पोजीशन या एट द टॉप रैंक. एंड rules were made by Brahmins and other people. They had to follow rulers and other people. They had to follow the rules made by Brahmins. So Brahmins were given important position in the society and they enjoyed all the rights. Differences among rich and poor were increased in Varna-based society. So this is about Varna-based society. कितना easy है अगर Varna-based society को इस वे से लिखोगे. No need to learn from the book. अपने आप बनाने वाला आंसर है. वर्ना बेस्ड सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नास. वर्नास आपको पता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस. जैसे ही लिखना आपके एक मिनट में दिमाग में आएगा. ब्राह्मण्स वर एट हाईएस्ट पोजीशन and all the rules and regulations were made by Brahmins. Rulers, they had to follow the rules made by Brahmins. Other people also had to follow. फिर आप बताओगे differences between rich and poor were increasing day by day in Varna based society. And life of rich was comfortable whereas life of poor was hard, आप कह सकते हो, because no rights were given to the poor people in Varna based society.
नेक्स्ट इज हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए होम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपको ये पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु वर ए होम्स। ए होम्स कौन थे? ट्राइबल्स ऑफ असम। ट्राइबल्स ऑफ असम। आपको पहले बताना है होम्स वर द ट्राइबल्स ऑफ असम, पहले तो ये बताओगे। फिर आप बताओगे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आप यही बताओगे कि इट वाज क्वाइट सेंट्रलाइज्ड, है ना, देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। फिर आप इसमें बताओगे कि दीज पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। ट्राइबल्स के अपने ही गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे, ठीक है। फिर आप बताओगे दे बिलीव्ड इन फोर्स्ड लेबर सच एज पेक्स। पेक्स में बिलीव करते थे इन फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर में विश्वास करते थे ये लोग। How did tribal societies change after being organized into a state? कितना easy। ट्राइबल सोसाइटीज में क्या चेंजेस आए जब वो ऑर्गेनाइज होगी इनटू अ स्टेट? तो आप यही लिखोगे ना, ट्राइबल सोसाइटीज बिकेम पावरफुल and rich when they organized into a state. First you will write like this na, tribal societies became powerful and rich when they organized into a state। पहले तो आप ये बताओगे, फिर आप एक एग्जांपल दे दोगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप एग्जांपल दोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एग्जांपल किसकी दोगे? फॉर एग्जांपल गड़ा कटंगा। आप गड़ा कटंगा गोंड की बताओगे, गोंड्स का आप बताओगे स्टेट, गोंड स्टेट गड़ा कटंगा बिकेम रिच, रिचेस्ट आप कह सकते हो रिचेस्ट स्टेट। गड़ा कटंगा जो थी दैट वाज गोंड स्टेट एंड इट वाज द रिचेस्ट स्टेट, रिचेस्ट स्टेट थी ये, ठीक है। अब आप बताओ गोंड राजास नो रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। फिर आप अमन दास के बारे में बता दो। अमन दास गोंड राजा assumed the title of Sangram Shah and his son Dalpat married the Rajput princess Durgavati. After the death of Dalpat, Durgavati ruled for 5 years as her son was minor. तो एक वुमेन ने 5 years के लिए रूल किया, वो भी ट्राइबल सोसाइटी पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम वुमेन रूल कर रही थी। ये तब के लोग प्रेफर नहीं करते थे वुमेन के अंडर रहना, तो वुमेन रूल कर रही है, इट मीन्स ये सोसाइटीज पावरफुल हो चुकी थी और वुमेन रूल कर रही थी। दुर्गावती रूल्ड फॉर 5 years and then she was defeated by Mughal forces, you know it well। तो how tribal societies changed after being organized into a state? They became powerful। यहाँ पे आप किसकी एग्जांपल दे दोगे? गड़ा कटंगा। गड़ा कटंगा रिचेस्ट स्टेट थी ऑफ गोंड्स। अब आप उसके बारे में सारा लिख दो कि गोंड राजास नो केम टू बी नोन एज राजपूत्स। फिर आप बताओ अमन दास के बारे में, फिर आप दलपत के बारे में बताओ, देन यू राइट अबाउट दुर्गावती एंड लास्ट में आप बताओ कि शी रूल्ड फॉर 5 years एंड देन शी वाज डिफीटेड बाय मुगल फोर्सेस। तो ये रिचेस्ट स्टेट थी ऑफ गोंड्स। गड़ा कटंगा वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ गोंड्स। सिपसिंग वाज द स्टेट ऑफ अहोम्स एंड गड़ा कटंगा वाज द स्टेट ऑफ गोंड्स। नेक्स्ट इज बंजारास क्यों इंपॉर्टेंट थे फॉर द इकोनॉमी? हु वर बंजारास? पहले तो ये पता होना चाहिए। ट्राइबल्स ऑफ राजस्थान क्यों इंपॉर्टेंट थे फॉर द इकोनॉमी? नो लिसन केयरफुली। बंजारास बोट फूड ग्रेन्स from the places where it was cheaper and sold them where it was costlier. These Banjaras were hired by Alauddin Khalji and in this way they earned huge profits for their ruler। तो अपने आप बताओ कि इकोनॉमी के लिए पार्ट प्ले करते थे ना, दे प्लेड ग्रेट रोल इन इकोनॉमी, दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर देयर रूलर एंड they also transported food grains to Mughal army as it was mentioned in the memories of Jahangir। जहांगीर की मेमोरीज में मेंशन्ड है। इट मींस कि दीस बंजारास वर हायर्ड बाय मुगल फोर्सेस, मुगल रूलर्स आल्सो ना, दे वर हायर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी एंड दे वर हायर्ड बाय मुगल रूलर्स आल्सो, ठीक है, दोनों ने इन्हें हायर किया था। आप बताओ कि दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स to the city markets। They also transported food grains to Mughal armies as it was mentioned in the memories of Jahangir, ठीक है। This is about Banjaras। Next is गोंड एंड अहोम स्टेट। दोनों में ही अगर आपको पूछा जाए, सिमिलैरिटीज भी पूछ सकते हैं, डिससिमिलैरिटीज भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज, तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या? बोथ वर ट्राइबल्स। गोंड्स एंड अहोम्स दोनों ही कौन थे? बोथ वर ट्राइबल्स and both were defeated by Mughals। For example, you know it well, Durgavati, she was defeated by Mughal army, and you know it well कि Homs were also defeated by Mughals। So both were defeated by Mughals।
एंड बोथ बिकेम पावरफुल आफ्टर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट, दोनों ही पावरफुल हुए थे आफ्टर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। तो ये तो आप सिमिलरिटीज में बता सकते हो कि दोनों ही ट्राइबल्स हैं, दोनों को ही मुगलों ने हराया एंड दोनों ही पावरफुल हुए थे व्हेन दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। तो दिस इज अबाउट सिमिलरिटीज एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू डिससिमिलरिटीज। डिससिमिलरिटीज में सबसे पहले तो आप उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग बताओ कि गोंड्स जो थे दे वर फ्रॉम गोंडवाना डिस्ट्रिक्ट, और आप बताओ कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वेयर होम्स वो कहाँ के थे? असम के। दे वर फ्रॉम असम, दे लिव्ड इन असम। गोंड्स लिव्ड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड गोंडवाना होम्स लिव्ड इन असम। गोंड्स बिलीव फॉलोड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाना है, व्हाट डू यू नो अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन? तो आपको आना चाहिए, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है, राइट नोट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो गोंड्स बिलीव्ड इन फॉलोड, गोंड्स फॉलोड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, whereas homes they did not follow shifting cultivation. Gonds never used firearms, homes used firearms. गोंड्स जो थे ना, इनकी आप कह सकते हो कि स्टेट जो थी दैट वाज दे हैड लार्ज स्टेट। गोंड्स की स्टेट लार्ज स्टेट थी, होम्स की स्मॉल स्टेट थी। गोंड्स के तो हमने कितना ज्यादा, देखो कितने ज्यादा हमने पढ़े, बरहोट्स, देन 84, इतने तो 70,000 विलेजेस तो अकबरनामा में ही मेंशन्ड है कि दे हैड 70,000 विलेजेस। तो गोंड्स का जो आप कह सकते हो ना, गोंड्स हैड लार्ज स्टेट, होम्स हैड स्मॉल स्टेट। So these are the dissimilarities between Gonds and Ahoms, and I have told you also about the similarities between Gonds and Ahoms. So students learn these topics, ठीक है? आपको हिस्ट्री के 2 ही चैप्टर हैं, यू हैव टू रिवाइज बोथ। और इसके लिए आपको कैसे रिवीजन करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल do thorough reading of both the chapters. No need to learn question answers. Give importance to thorough reading of the chapter, because if you will not do thorough reading, then you can't able to do MCQs. If you want to take full marks, then do thorough reading. You have enough time. We have revised so many times. No, do thorough reading. It's your turn, students. No, I have done all my best, and you have given lots of facilities by your parents also. Now students, it's your turn to give good result to your teachers and to your parents. Okay, work hard and do thorough reading these days. ठीक, and do your paper sincerely. कैसे तक आपने बहुत sincerely करने हैं, ठीक है?